Hello, my happy children, my loving students. How are you? आप कैसे हैं? पिछले वीडियोस में हमने जो फर्स्ट पोइम थी उसको फिनिश किया था. टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पोइम दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस. बच्चों, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग पोइम एंड पर्सनली मैं आपको बताऊं, आई एम रियली वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पोइम. बहुत प्रेरणादायक कविता है. अक्सर लोग कहते हैं कि हमने वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी और या लक ने साथ नहीं दिया. ऐसा कुछ नहीं होता. बच्चों, भगवान ने हमें जिन कंडीशंस में भेजा है, वी मस्ट ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू दिस नेशन एंड टू द वर्ल्ड. तो इसी तरह के शब्दों के साथ में ये पोइम अब हम आज इसको सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद में मैं आपको इसकी डिटेल इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग बताऊंगा. बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूशन से हैं. जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कोई भी इंग्लिश की चीज है उसको हिंदी में तो बताना दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू. क्योंकि जब तक आप हिंदी में नहीं समझेंगे तो इंग्लिश में you won't be able to explain these stanzas and lines into English. Okay, let's start. First, we will have the reading of this great poem, On His Blindness, John Milton. बच्चों, this was a very great poet, John Milton of 17th century. When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent. To serve therewith my Maker and present my true account lest he returning guide, doth God exact day labor lie denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post o'er land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. बच्चों, दिस पोइम इज ऑफ 14 लाइन्स. ये अगर आप पोइम देखें, ये पोइम 14 लाइन्स की पोइम है और इस पोइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम है. एक्चुअली दिस पोइम इज इटालियन सोनेट. बच्चों, सोनेट इज अ सैड सॉन्ग. इन फैक्ट एक ऐसी कविता होती है दैट इज हैविंग अ सैड थीम, डिजेक्शन, फुल ऑफ डिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट. एक ऐसी थीम पर ये पोइम बनी हुई होती है, पोइम लिखी जाती है जिसकी जो थीम होती है वो दुख होती है या निराशा होती है. इनफैक्ट दिस इज इटालियन सोनेट एंड दिस पोइम इज ऑफ 14 लाइन्स. This poem has two parts. Number one, octave. First 8 lines, each 4 lines, and this part is called octave. And the second other part that is having 6 lines, 3 each in 2 stanzas, that is called sestet. Rhyming scheme, बच्चों, इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो हर लाइन के लास्ट में this is spent. Okay? फर्स्ट लाइन का द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज स्पेंट. हमने लिखा स्पेंट. इसी तरह से वाइड, ये दीज ऑल आर द वर्ड्स दैट आर इन द दे आर द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन. स्पेंट, वाइड, हाइड, बेंट, प्रेजेंट, गाइड, डिनाइड, प्रिवेंट, नीड, बेस्ट, स्टेट, स्पीड, रेस्ट, wait. Let's see the rhyming scheme. This spent, the last word of the first line is spent and the last word of fourth line is bent. Now they have the rhyming, the rhyme spent, bent.
to second and third word wide height. In the same manner, again we have the second part of octave, that is the last word of fifth line is present and the last word of eighth line is prevent. Present, prevent, kite, denied. Okay. Now, if we see the rhyming scheme of these first four lines, A, B, B, A, you just see spent A, wide height B, B, and fourth word bent, that is A, B, B, A. And the second part of this octave is also having the same rhyming scheme, that is A, B, B, A. बच्चों, ये these 8 lines, first 8 lines is called octave and rhyming scheme A, B, B, A, B, B, A. Again, we go forward. The last word of 9th line is need. The last word of 12th line is speed. Now just you see that they are having the rhyming scheme same. Need, speed, best, rest, state, wait. बच्चों, these are 9, 10th, 11. They are having the rhyming scheme C, D, E. Again 12th, 13th, 14th, C, D, E. The rhyming scheme is C, D, E, C, D. The whole rhyming scheme of this poem is A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Okay. And these are the important word meanings. Consider, think, सोचना. लाइट, आईसाइट, आंखों की रोशनी. स्पेंट, लॉस्ट, खो जाना. बिफोर, पहले. हाफ माई डेज, हाफ लाइफ, आधा जीवन. वाइड, वास्ट, विशाल. टैलेंट, स्किल, कौशल, प्रतिभा. हाइड, टू कवर, छिपाना. लॉस्ट, स्ट्रीट, स्थिर. बेंट, एंशियस, उत्सुक. मेकर, ईश्वर, गॉड. माई टू अकाउंट, लाइफ एक्टिविटीज, जीवन के कार्य. काइड, स्कॉल्ड, डिस्पाइज, डांटना या निंदा करना. एक्सेप्ट, डिमांड, मांग. डिलीवर, हार्डवर्क, कठिन कार्य. डिनाइड, टेकन अवे, छीन लेना. फॉन्डली, फुलिशली, मूर्खतापूर्व. पेशेंस, एंडोरेंस, धैर्य या सहनशीलता. प्रिवेंट, चेक, रोकना. मर्मर, कंप्लेन, शिकायत. बियर, टॉलरेट, सहना. योक, जेंटल बर्डन, भार डालना या हिलाना. बिडिंग, ऑर्डर, आदेश. पोस्ट, ट्रेवल पास्ट या तेज यात्रा. ओशियन, बिग सी, बड़े सागर. तो बच्चों, these are the word meaning and I have already told you this is sonnet, a poem having tragic theme, real or imaginary. Any poem that is having 40 lines and having the tragic end or tragic theme, that is called sonnet. Now this sonnet is Italian. This is Italian sonnet because it is written in the verses that is written in Italy. So that's why this is called Italian sonnet. बच्चों, now we discuss this poem on his blindness. अपने अंधेपन पर. बच्चों, जॉन मिल्टन वो बहुत बड़े पोइट थे और 44 की एज में वह पूरी तरह से अंधे हो गए और अंधे होने के बाद उन्होंने ईश्वर से वो शिकायत करते हैं कि हे भगवान, मैं तो तेरे गौरव में, तेरी प्रशंसा में कविताएं लिख रहा था और फिर भी तूने मुझे अंधा बना दिया. ये कितना बड़ा अन्याय तूने मेरे साथ किया. तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था. When I consider, जब मैं ये सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई और हाफ माई डेज, अभी तो मेरा आधा जीवन शेष है, आधा जीवन भी अभी पूरा नहीं हुआ है और तूने मेरी जो आई साइट थी, आंखों की रोशनी थी, वो छीन ली. इज दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, ये संसार कितना विशाल है, लेकिन चूंकि अब मैं अंधा हो गया हूं इसलिए पूरा संसार मेरे लिए अंधकारमय
हो गया है, एंड दैट वन टैलेंट, एक पोइटिक टैलेंट, मुझ पर कविता लिखने का जो टैलेंट था, वो टैलेंट भी तूने मुझसे छीन लिया। और अगर विच इज डेयर टू हाइड, अगर मैं उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करता, यूज नहीं करता, जो मैं कर नहीं सकता क्योंकि अब मैं अंधा हो गया हूं, तो वो मेरे लिए चारित्रिक मृत्यु के समान है। मैं उस टैलेंट को यूज करना चाहता हूं, लेकिन तूने मुझे अंधा बना दिया, इसलिए मैं उस टैलेंट को यूज नहीं कर सकता, और यूज नहीं करूंगा तो वो मेरे लिए चारित्रिक मृत्यु है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो टैलेंट मेरे लिए बेकार, व्यर्थ हो गया है। दो माई सोल मोर बेट, लेकिन मेरी आत्मा वो कहती है नहीं नहीं, वो अधिक उत्सुक है, वो कहती है नहीं, तुम्हें ईश्वर से शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहता हूं, कभी कहता है कि नहीं, टू सर्व देयर विल माई मेकर, मेरी आत्मा कहती है कि कोई भी कंडीशन हो तुम्हें उस ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। वो कहता है कि मैं सेवा कैसे कर सकता हूं, सेवा तो भाई कवि के लिए एक सेवा है कि वो कविता लिखे, लेकिन कविता लिखने में वह असमर्थ है क्योंकि वह अंधा हो गया है। तो वो कहता है कि जब एट प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मृत्यु होने के बाद जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा, माई ट्रू अकाउंट, वो मुझसे पूछेगा मैंने तुझे इतना बड़ा पोइटिक टैलेंट दिया, कविता लिखने का गुण दिया, तूने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और वो मुझे इस बात के लिए डांटेगा। काइट, काइट कहते हैं डांटना, रिटर्निंग काइट। डॉग गॉड एक्सेप्ट डिलीवर लाइट द नाइट, कभी कहता है, शिकायत करता है कि हे भगवान, जब तूने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, उसके बावजूद भी तू मुझसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए कहता है। तू मुझसे इस बात के लिए कहता है कि मां करता है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दोबारा से परिश्रम करूं, ये कैसे संभव है? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण अंदाज में ईश्वर से शिकायत करता हूं कि एक तरफ तो तूने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, और दूसरी तरफ तू मुझसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए कहता है। ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, बट पेशेंस टू परवेट, लेकिन मैं धैर्य से, मेरी आत्मा मुझे रोकती है, शिकायत करने से रोकती है। मैं भी धैर्य धारण करके दोबारा से इन चीजों पर जब विचार करता हूं तो मैं पाता हूं दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मेरी आत्मा मुझसे कहती है, गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ईश्वर को मनुष्य की तरफ के किसी भी क्रियाकलापों या उसके दिए गए उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने जो व्यक्ति को जो भी कंडीशंस दी, जो भी गुण दिए, जो भी उपहार दिए, वो उसने दे दिए, और किस कंडीशन में मनुष्य को जन्म दिया, ये सब देने के बाद ईश्वर को मनुष्य के इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो केवल एक चीज चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कंडीशंस, जो भी उसको परिस्थितियां दी गई हैं, वो उसमें बेस्ट अपना जो कुछ भी महानतम कार्य है, जो उसका सर्वश्रेष्ठ उसका अपना कौशल है, प्रतिभा है, वो उसको शो करे, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों। गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, हु बेस्ट बेयर हिज माइंड ड्यू, दे सर्व हिम बेस्ट। ईश्वर की नजरों में वो व्यक्ति जो दी हुई परिस्थिति में, वो जो भी उसके पास में गुण हैं, जो भी उसके पास में रिसोर्सेज हैं, उनको बेस्ट इस्तेमाल करता है, और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करता। ये नहीं करता कि भगवान मुझे इतना कुछ और दे दे, मुझे ये परिस्थितियां दे दे, तब मैं तेरी सेवा करूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं करता। और हिज स्टेटस किंगली, वास्तव में ऐसा व्यक्ति दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है, और ऐसे लोग ही भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का हिज स्टेटस किंगली, पूरा संसार ही, वो तो ईश्वर तो राजा है, राजाओं का राजा है, पूरा संसार ही उसका अपना राज्य है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत एंजल्स उसके, दे आर पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। बच्चों, हजारों देवदूत
आकाश में, समुद्र में, पृथ्वी में, हर जगह उसके कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, हर जगह वो तैनात हैं और इन द ब्लिंक कहते हैं कि पलक झपकते वो ईश्वर के किसी भी आदेश को मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं कि ईश्वर कोई उनको कार्य बताए और वो देवदूत तुरंत उसको कर ले। तो हम मनुष्यों की तो उनके सामने औकात ही क्या है। एंड दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। बच्चों, कभी लास्ट में वो ईश्वर की महानता, उसकी सर्वोच्चता पर विश्वास करता है। वो कहता है नहीं, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर ही मनुष्य को जैसा चाहे वैसा बनाता है और मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के सामने प्रकट करता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी वीरता के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ उन चुनौतियों का सामना करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और अच्छे सुख के दिन आने का इंतजार करते हैं, वास्तव में वो ही उसके सबसे सच्चे भक्त या सेवक होते हैं। बच्चों, ये पोएम अभी मैंने आपको हिंदी में बताई और आपको वर्ड मीनिंग भी मैंने ये सब बता दिए हैं। इस पोएम के बारे में मैंने बताया। इनफैक्ट जॉन मिल्टन, ही वॉज अ वेरी ग्रेट पोएट and he became totally blind at the age of 44. In fact, he lodges his complaint against God for the injustice done to him. He says that when I was writing the poems in the glorification of God, oh God, why you made me blind at the early age of 44, when half of his life is still left to live. Then the whole world has become blind for the poet. Now he is unable to use his poetic talent and he wanted to compose poems in the glorification, in the praise of God. But now he is unable. He can't do so. Why? Because he is blind. Now that poetic gift has stayed with him useless. But his soul just ask him not to lodge, not to make any complaint against God. Again, the poet says that when the God has made him blind and he is unable to compose the poems, and after death, when he would go to his kingdom, God would ask him why you didn't use the poetic talent, and he won't hear any excuse. He won't hear any excuse. Now, this is a very great injustice. When he has deprived me of my blindness, even then he wants that I should work like a common person. This is not possible. But his soul again consoles him by saying that you should not make any complaint to God, because God doesn't need any man's activities, any man's work, any grace, any boon, any blessing. Why? Because he is King of Kings. He doesn't need any work on the part of man. His thousands of angels are posted in the sky, in the ocean, on the earth, everywhere, and they are ready to do his work in the blink of an eye. So God doesn't need any work on the part of man. And he says, poet realizes the supremacy of God and resigns himself to his fate and God's will. He says, those who are always ready to carry out his order in the blink of an eye without making any complaint, they are the best servant to God. A person who faces all the challenges, all the difficulties of life without any complaint, they are the best servant to God. बच्चों, ये मैंने आपको इस पोएम के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है। इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम और जो इम्पोर्टेंस थी वो मैंने आपको समझा दी है और ये वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको बता दिए हैं। दिस इज द होमवर्क फॉर यू टुडे। You have to learn these word meanings and also ये जो rhyming scheme है बच्चों,
ये भी आपको अच्छी तरह से समझना है। दिस इज पोएम, दिस इज राइमिंग स्कीम, दिस इज वर्ड मीनिंग। आज आपको इतना ही पढ़ना है और नेक्स्ट जो वीडियो है कल हम आपको इस पोएम के एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया के बारे में बताएंगे, डिस्कस कराएंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।